اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑے شکوے ہیں، برامدہ بھٹی صاحب کے بھی، مینگل صاحب کے بھی، ہربیار مری صاحب کے بھی. کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ نیشنل لیڈرشپ نے کیا کیا اب تک بلوچستان کے لیے یا بلوچ عوام کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بڑے معتبر لوگ ہیں جو یہاں بات کر رہے ہیں، اور یہ بات جو آج کر رہے ہیں ظاہر ہے اس کے پیچھے ایک بڑا پس منظر ہے، ایک زیادتی ہوئی ہے اور مسلسل ہوئی ہے. لیکن میں بڑے احترام سے کہنا چاہتا ہوں کہ بڑا آسان ہے، اور یہ ویسے فیشن بھی بن گیا ہوا ہے آج سے نہیں برسوں سے، کہ پنجاب کے اوپر ہی سارا نزلہ ڈال دیا جائے اور ملبہ ڈال دیا جائے. اگر آپ 4 فوجی ڈکٹیٹر جو ہیں ان کے نام پڑھ لیں تو دیکھ لیں ان میں کتنے پنجابی تھے. اسی طرح آپ پاکستان کے صدور دیکھیں اور پنجابی وزراء اعظم دیکھیں تو اس کو بھی آپ کو اس کا بھی ایک اندازہ ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ گیس جو ہے وہ بلوچستان سے نکلی ہے، اور میں خود بھی گیا تھا ڈیرہ بگٹی اور سوئی. آسمہ آپ بھی اس ڈیلیگیشن میں تھی، اور ہم نواب صاحب شہید سے ملے تھے. ہم تو انہیں شہید سمجھتے ہیں، وہ بہت بڑے آدمی تھے، اور انہوں نے پاکستان کے آئین پر بھی ان کے دستخط تھے، اور انہوں نے کنٹریبیوٹ بھی کیا، اور ہم یہ مانتے ہیں کھلم کھلا. اور ہم نے اس وقت بھی بات کی تھی، آج بھی کہتے ہیں کہ اکبر خان بگٹی صاحب کو ایک سازش کے تحت جنرل پرویز مشرف نے قتل کیا. قتل ان کو نہیں کیا گیا بلکہ پاکستان کی وحدت کو قتل کیا گیا. بہت بڑا ظلم ہوا، اور کاش یہ جو جمہوریت آئی تھی یہ اکبر بگٹی شہید کے قاتلوں کو سب سے پہلے پکڑتی. اسی طرح باراج مری صاحب کا قتل کیا گیا، اور ہزاروں سینکڑوں ان کے ساتھی ہیں جن کی کلنگز کی گئی ہیں. لیکن کلنگز تو ان پنجابی سیٹلرز کی بھی ہوئی ہیں. وہ تو کوئی قبضہ کرنے وہاں نہیں گئے تھے، محنت مزدوری کے لیے گئے ہیں. وہ 100 سال سے بعض لوگ وہاں رہ رہے ہیں پاکستان کے قیام سے پہلے. بہت سارے لوگ پاکستان کے قیام کے بعد بھی رہ رہے ہیں. اب وہ ان کو وہاں پہ مارا جا رہا ہے. اگر اس کی ذمہ داری بھی فوج پہ ڈال دی جائے تو یہ تو ایک مذہقہ خیز بات ہے. تو یہ ایک پراکسی وار چل رہی ہے جو دونوں طرف سے غلط ہے، اس کو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا. پر ایک بات میں اور کرنا چاہتا ہوں، اگر ایک منٹ ایک سیکنڈ، کہ گیس تو ضرور یوز کی ہوگی، منرلز بھی یوز کی ہوں گی پاکستان میں، پنجاب نے، باقی صوبوں نے. جو گوادر خرید کے ملک فیروز خان نون صاحب نے بلوچستان میں شامل کیا تھا، اس کی بھی ادائیگی نیشنل ایکسچیکر سے کی گئی تھی. اس میں پنجاب کے ٹیکس پیئرز کا پیسہ بھی تھا، سندھ والوں کا بھی تھا، کے پی کے کا بھی تھا جو اس وقت صوبہ سرحد کے نام سے تھا. وہ آج ماشاءاللہ بلوچستان کا حصہ ہے، اس کے پروونشل ریونیوز بلوچستان کو ملتے ہیں. ہمارے ایم پی ایز کو یہاں سال میں ڈیولپمنٹ کے لیے 1 کروڑ ملتا ہے. ان کے اراکین اسمبلی کو ایک طویل عرصے سے ہم سے 5-4 گنا زیادہ فنڈز ملتے ہیں. ابھی بھی 30 کروڑ روپے ان کو ملتا ہے. انہیں چاہیے کہ وہاں کام کریں. میں پھر بھی کہوں گا کہ وہاں پہ فوج کا قانون یا ایف سی کا قانون نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے بہت مار کھائی ہے، کچھ مار ہمیں بھی ماری گئی ہے، 10 سال ہمیں بھی رگڑا لگا ہے اسٹیبلشمنٹ. اچھا پاکستان میں ایک ماحول بنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی بالادستی نہیں ہونی چاہیے. درست بات ہے، یہ بات تو سب مانتے ہیں، لیکن مینگل صاحب نے ہمیں جوائن کیا. مینگل صاحب السلام علیکم، آپ کیا کہیں گے اس مسئلے کے اوپر؟ کس حد تک ناراضگی ہے؟ آل پارٹیز کانفرنس میں آپ لوگ کیوں شمولیت نہیں کریں گے؟ آپ کا کیا سٹانس ہے؟ کیا کہیں گے؟ کیا مسئلہ اتنا حد سے نکل گیا ہے کہ واپس نہیں آ سکتا؟ مینگل صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ حل طلب تھا اگر اس وقت کے حکمرانوں کو اس مسئلے کو سمجھنے کی بوجھ ہوتی. لیکن یہ ایک المیہ رہا ہے کہ یہاں پر حکمرانی کرنے والے ماسوائے اپنے ارد گرد یا جہاں پر ان کے مفادات شامل ہوتے ہیں ان کے توجہ دینے کے علاوہ اور کسی مسئلے پر انہوں نے آج دن تک توجہ نہیں دی. اور ان کی مثالیں میں آپ کو دوں گا. جو اس پاکستان جو تھا وہ بنگلہ دیش بنا، وہ کوئی قدرتی آفت کی وہ وجوہات نہیں تھی. انہی حکمرانوں کی کارستانیاں تھی، ان کی بدنیتی تھی یا ان کے وہ عزائم تھے جنہوں نے اس پاکستان کو بنگلہ دیش بنا دیا. جہاں تک اے پی سی کا تعلق ہے، موجودہ حکومت جس نے پیپلز پارٹی کی گیلانی کی جو حکومت اس نے اے پی سی کال کی ہے، میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا آج سے 4 سال پہلے جب آپ برسر اقتدار میں آئے تھے، کیا آئینی رکاوٹیں تھی آپ کو اے پی سی بلانے میں؟ کیا کسی طرف سے آپ کو دباؤ تھا کہ اے پی سی نہ بلائی گئی؟ کاش کہ یہ اے پی سی اس وقت بلاتے تو شاید یہ مسائل جو آج اتنے پیچیدہ ہیں اس وقت تھے. یہ نہیں میں کہوں گا کہ نہیں تھے، لیکن اس کا کوئی حل نکل سکتا تھا.
साल बाद जब अमेरिकन कांग्रेस में एक रेजोल्यूशन पेश किया गया, अब मैं समझता हूँ ये बलूचिस्तान के लोगों की महरूमियों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एपीसी नहीं बुलाई, बल्कि उस आका की नाराजगी पर अमेरिकन कांग्रेस में जो एक वो रेजोल्यूशन आया, उस आका की नाराजगी को बर्दाश्त ना करते हुए उन्होंने एपीसी बुलाई और खुद एपीसी जो है कंट्राडिक्ट हो गई है। लेकिन मेंगल साहब, कोई तो गुफ्तगू का पॉइंट होगा, कहीं से तो बात का आगाज होगा। आखिरी बात जो है वो पहले हो रही है, यानी आजादी वाली। निगोशिएशंस तो नहीं हुई, मुज़ाकरात तो ना आपसे हुए, ना बुक्टी साहब से हुए, ना मरी साहब से हुए, किसी से नहीं हुए, तो ये आखिरी बात पहले क्यों हो रही है? अस्मा, मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा, आप कहती हैं कि मुज़ाकरात नहीं हुए, मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकरात नवाब नौरोज खान के साथ हुए, कुरान शरीफ पर उसको वास्ता देकर उसको उसके बेटों को उसके सामने फांसी दी गई और वो जो है जेल में वफात पा गए। मुज़ाकरात नवाब अकबर खान के साथ मुशाहिद हुसैन और चौधरी शुजात की मौजूदगी में हुए। कमेटियां बनी, वसीम सज्जाद की, मुशाहिद हुसैन की कमेटी में मैं बजात खुद हम लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। ये ना कहें कि मुज़ाकरात ना हुए, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि मुज़ाकरात को अमली जामा पहनाया ना गया। उन मुज़ाकरात के बजाय फौजपिशियां की गई, लोगों को फांसियां दी गई। आज वो रहमान मलिक कहते हैं कि मैं केसेस विड्रॉ करूंगा या मुज़ाकरात की दावत देता हूं। मैं आपके तवज्जुह से लोगों को ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि जब कुरान शरीफ के नाम पर हमें धोखा दिया गया तो हम रहमान मलिक पर कैसे भरोसा करें जो सूरह इखलास तक नहीं पढ़ सकता। ठीक, अच्छा मेंगल साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। सीबीएम्स क्या, फ्रीडम चार्टर क्या है, बरामदा बुक्टी साहब का, हरबियार मरी साहब का, जिसमें बातचीत हुई, हरबियार साहब की मुलाकात रहमान मलिक साहब से हुई नहीं हुई, क्या गुफ्तगू हुई और क्या बलोचिस्तान वाकई हाथ से निकल चुका है? एक कौमी मुकालमा आज आप देख रहे हैं। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं बलोचिस्तान के रहनुमाओं के साथ और इस सिलसिले में उनका क्या कहना है। आपने अख्तर मेंगल साहब की भी गुफ्तगू सुनी, जिनका ये कहना था कि जो सीबीएम्स का टाइम है या जो अब एपीसी बुलाने की बात है, ये बहुत देर हो गई है इस सिलसिले में। मेंगल साहब, बरामदा बुक्टी साहब, आपको हम दोबारा खुशामदीद कहते हैं। मरी साहब, मोहब्बत खान मरी साहब हमारे साथ हैं और साद रफ़ीक हमारे साथ हैं। मरी साहब, आप क्या कहेंगे, क्योंकि अब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की भी वो बात कर रहे हैं कि ये देर हो गई है इसमें। मेरा ख्याल है कि उनका कहना कुछ शिकवे उनके दुरुस्त भी हैं, कुछ शिकवों पे हम उनके साथ बात भी करें। कितने दुरुस्त हैं उनके शिकवे, कितनी एहसास महरूमी उनकी दुरुस्त है? बेबी, बुक्टी साहब का जो कहना है वो मैं समझता हूँ कि उसमें कोई शक नहीं कि उनके साथ ज्यादतियाँ हुई और वो नौजवान भी है, जज्बाती भी हैं और उनके साथ जो कुछ हुआ शायद मेरे साथ होता मैं भी यही कुछ कहता जो वो कह रहे हैं। लेकिन ये आखिरी पॉइंट नहीं है। मैं एज ए उनकी उम्र में मैं बुक्टी साहब से बड़ा हूँ भी, मैं ये नसीहत करता हूँ कि जी आपका ख़ानदानी पस मंज़र, आपका बाप, आपका दादा, आपका परदादा, वो ज़रा हिस्ट्री देख ले। आपने इसी मुल्क में, इसी कौम में, अपना इलाका, आपका सब कुछ आपका है, उसी में ही आपका रहना है। हाँ, लेकिन हकूक़ की बात इसमें तो हम भी यही कह रहे हैं कि हमारे साथ ज़्यादतियाँ होती रही है। अब ज़्यादती हुई हमारी किस तरह हुई है, कसूर भी फिर मैं समझता हूँ इसमें मैं खुद भी शामिल हूँ कि हम लोगों का है कि हमने अपने बच्चों को वो तालीम दी होती। आज इस्लामाबाद का सेक्रेटेरिएट हमारे बलोच सेक्रेटरियों से भरा होता, ये एस्टेब्लिशमेंट हमारी होती तो हमें या बड़े नवाब साहब को या नवाब बरामदा साहब को ये कहने की या शिकायत करने की ये नौबत ही। अच्छा बुक्टी साहब, ये बात तो है, सराइकियों के भी कुछ एहसास महरूमी है, पंजाब के कुछ एरियाज के अंदर भी लोगों के एहसास महरूमी है, सिंध के अंदर भी एहसास महरूमी है, लेकिन वो सब आज़ादी की बात नहीं कर रहे। आप जहां से बात शुरू कर रहे हैं वो असल में आखिरी बात है, तो क्या आप पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जाके खड़े हो गए हैं? और फिर जो आप पे इल्जामात हैं कि आपको अमेरिका, हिंदुस्तान इनकी सपोर्ट है, क्या फिर लोग ये नहीं समझेंगे कि वाकई उनकी सपोर्ट है जिसकी वजह से आप आज़ादी का मुतालबा कर रहे हैं? जब जहाँ तक साद रफीक साहब की बात है सेटलर का, मैं कभी सेटलर को जस्टिफाई नहीं करता हूँ कि उनका जो कत्ल हो रहा है बलूचिस्तान में वो दुरुस्त है। हर
जगह अगर कोई इंसान मारा जाए तो वो एक अफसोसनाक अमल समझा जाता है और समझा जाना चाहिए। लेकिन अगर आप इसके ऊपर गौर करें तो ये एक उस अमल का रिएक्शन है जो फौज और इंटेलिजेंस ने बलूचिस्तान में पैदा की। आप बताएं पिछले 60 सालों से कोई सेटलर पर कभी कोई हमला हुआ या कोई ताल्लुकात, कोई इस तरह की महसूसियत किसी ने होने दी कि यहाँ पर कोई वो आप ये हैं या वो उस कौम का है? नहीं था। जब आप वो हालात पैदा करेंगे, आप लोगों की झोंपड़ियों पर वो जेट गनशिप हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करेंगे जो आज तक इस्तेमाल हो रहे हैं, वो आप इस्तेमाल करेंगे जो आपने अपनी दिफा के लिए बनाए हैं, वो आप बलोच कौम की झोंपड़ियों पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इल्जाम तो आप पे भी है कि आपके पास भी ऐसे हथियार हैं जो जदीद तरीन है, जो कि कहीं और से आए हैं, तो ये इल्जाम तो आप पे भी लगाया जा रहा है। मैं बता रहा हूँ आपको, आप जरा हौसला करें, मेरी बात जरा कंप्लीट करने दें। तो ये वो चीजें हैं, वो अवाम का एक रिएक्शन है। अच्छा, अभी आप आए कि क्या वजूहात या किस वजह क्या है, या 60 सालों से हमारे वसाइल फेडरल के पास हैं और मरकज में अक्सरियत पंजाब की है, ब्यूरोक्रेसी में अक्सरियत पंजाब की है, आर्मी में अक्सरियत पंजाब की है। मैं इसीलिए पंजाब का नाम ले रहा हूँ। तो वैसे मुझे कोई वो नहीं है कि मैं कोई के गलत बयानी करूं। मेजोरिटी है और हर जगह पर ब्यूरोक्रेसी में, आर्मी में तो बीमार भी वही है। और इन तमाम वजूहात, जो तमाम हालात पैदा किए गए हैं, उन हालात की जिम्मेदार यही फेडरेशन पाकिस्तान है। और आप ने 50-60 सालों से बलोच कौम को एक ऐसे हालत में रखा है जिससे बलोच कौम की जेनोसाइड तालीमी लिहाज से, माशी लिहाज से, हर लिहाज से, एक रवायती लिहाज से हमारे कल्चर। मेरे सवाल के जवाब नहीं मिला कि जो आप पे असलहे का इल्जाम है, जो फंडिंग, फॉरेन फंडिंग की बात हो रही है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? बहरहाल बहुत सारा असलहा आपके पास बाहर से आ रहा है। आज तक कोई असला नहीं मिल रहा है पाकिस्तान में भी। मैं पहले भी कह चुका हूँ, किसी असले की कोई कमी नहीं है। मेरा कोई इस तरह के असले के जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, कोई जाती ताल्लुक नहीं है कि मैं उनसे पूछ सकूं कि क्या है या क्या नहीं है, कहाँ से आ रहा है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में भी कुछ कम नहीं है। लेकिन एक मुल्क अगर दूसरे कौम के वसाइल पर कब्जा करने के लिए फंड ले सकता है, किसी के वसाइल पर कब्जा करने के लिए, एक कौम को गुलाम बनाने के लिए, तो अभी तक मिला नहीं है। अगर मिले तो मैं समझता हूँ लेना चाहिए सर आंखों पर। आपको अमेरिका और हिंदुस्तान की सपोर्ट नहीं है? अमेरिका और हिंदुस्तान की सपोर्ट नहीं है आपको? अपने रोरा बाकर की जो है करारदाद, उसको भी सपोर्ट किया है, तो आपको सपोर्ट तो है ना? आप अफगानिस्तान में रहते रहे हैं, हिंदुस्तान के साथ आपके लिंक्स की बात हो रही। जी, ये तो सपोर्ट मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल हमें जो ये अभी जो मॉरल सपोर्ट मिल रहा है बिल्कुल है। पहले जो हमारे हम पर इल्जामात लगाए गए हैं वो बिल्कुल गलत थे। और मैंने तो वाजे कर दिया कि अगर हमें सपोर्ट मिले तो आप समझे हमने ले लिया। ठीक, मैं तो इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ कि हमें कोई सपोर्ट देगा और हम इतने बेवकूफ होंगे कि नहीं भाई हमें सपोर्ट नहीं दो, हमें इस तबाही में चलने दो, हम ताकि तबाह होते रहें। अच्छा साद रफीक साहब, जी बुख्ती साहब, एक बात मैं गुजारिश करूँ कि आप जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं इस पे आप यकीन करेंगे, नवाज शरीफ साहब 2/3 अक्सरियत के साथ इस पार्लियामेंट में आए, पंजाब से ताल्लुक रखते थे, कुछ ताल्लुकात की वजह से उनको मुल्क बदर किया गया। बलोचों के लिए तो नामुमकिन है कि इस सतह तक 2/3 अक्सरियत हमारा हो, और जिसका 2/3 अक्सरियत है भी उसको भी इस तरह मुल्क से निकाला जाए। तो आप, हमारी तो 60 साल के तजर्बे हैं, आप हमें कहते हैं कि इस सिस्टम पर यकीन करें। साद रफीक साहब, आप कुछ रिस्पॉन्ड करेंगे? ये शिकवे जो है खास करके मियाँ साहब के हवाले से भी उन्होंने बात की है, क्या कहेंगे आप? हम इसको कौमी मसला नहीं बना सके। बिल्कुल करूंगा जी। ये बातें जो नवाब साहब की, इनमें से बहुत सारी बातें दुरुस्त हैं, बहुत सारी बातों से मैं इत्तफाक करता हूँ, बाज़ बातों से मैं इत्तफाक नहीं भी करता। जिनसे इत्तफाक नहीं करता मैं आपको ब्रेक में भी कहा था, उनकी तरफ इस वक्त जाना नहीं चाहता। और मैं 2-3 बातें ज़रूर कहूँगा। एक तो मैं बतौर एक पॉलिटिकल वर्कर के ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो फ़ौजी बालादस्ती बरसा बरस कायम रही है, जिसमें बलोच हमारे भाइयों को भी बहुत ज़्यादा नाराज़गी है और उनका नुकसान हुआ है, वो नाराज़गी पाकिस्तान के बाकी सूबों को भी है। लेकिन मैं आपको ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पंजाब शायद प्रो एस्टेब्लिशमेंट रहा होगा बहुत से सालों में, लेकिन पिछले 12-14 साल 15 साल से तो मुसलसल हम भी उसी लाइन पर हैं, हमें भी बात की समझ आई है।